अच्छा जी, so this is question number 150. All right. So we are starting this at 150. तो hopefully इंशाल्लाह 5-6 questions जो है वो आज भी हो जाएंगे. So question number 150 says what? Figure 8.1 shows a simple AC generator. The coil is turning and an EMF induced in the coil. ठीक है. The generator contains a permanent magnet. State the name of metal used in the permanent magnet. तो permanent magnet में कौन सा metal use होता है? That's steel. सही है. So permanent magnet में क्या चीज़ use होती है? Permanent magnet में we have steel. At the instant shown in figure 8.1, the induced EMF is maximum. Explain why the induced EMF is maximum. अब हमने ये बात डिस्कस करी थी क्लास में कि जब हॉरिजॉन्टल होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम, जब वर्टिकल होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, ज़ीरो. जब हॉरिजॉन्टल होगा तो जो भी वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, जब वर्टिकल होगा तो क्या हो जाएगा? ज़ीरो. एंड उसका रीज़न ये है कि इट्स मैक्सिमम ऑन हॉरिजॉन्टल. उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है एंड दैट इज़ के द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड across the coil is maximum in horizontal position. So horizontal position में what? The change in the rate of magnetic field, that's the maximum across the coil. State the position of the coil where there is no induced EMF. तो वो हम अभी already discuss कर चुके हैं कि horizontal में maximum है, vertical में क्या होगा? No induced EMF. So this right here is going to be vertical. Vertical position has no induced EMF. So when is the induced EMF going to be zero? It's going to be when the coil is at its vertical position. Horizontal पे maximum, vertical पे क्या होना चाहिए? Minimum zero होना चाहिए. Does that make sense to everyone? ठीक है. अच्छा तो ये अच्छा so in this question right here आपके पास either or था. तो ये तो आपके पास एक है and the or is what? And the or is an electronics question. तो ये डायोड है, इनपुट आउटपुट. ये तो खैर मेरे ख्याल में आप लोगों को आता भी होगा, बट क्योंकि हमने बाईस्टेबल और एस्टेबल सर्किट्स किए नहीं अभी तक, तो वी कैन स्किप दिस एंड वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट. सो 151 जो है वो अभी हम स्किप कर रहे हैं. ऑलराइट. सो वी आर गोइंग टू गो डायरेक्टली गो टू 152. हाँ, कौन सा? वो छोड़ दो. रिमेंबर हॉरिजॉन्टल पे रेट ऑफ चेंज क्या होगा? मैक्सिमम. हॉरिजॉन्टल पे रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम है, हेंस ईएमएफ इज आल्सो गोइंग टू बी मैक्सिमम. वर्टिकल पे अब ईएमएफ अगर ज़ीरो है तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा? ज़ीरो. हॉरिजॉन्टल पे आपका रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम है, इस वजह से ईएमएफ मैक्सिमम है. वर्टिकल पे रेट ऑफ चेंज ज़ीरो है, हेंस ईएमएफ भी क्या है? ज़ीरो है. ये कहानी क्लियर है सबको बेटा? नहीं? Yes? अच्छा जी. Then 151 we are skipping for now. Alright, we are going to go to 152. A teacher demonstrates magnetic screening when a magnet is placed near a small cardboard box. Paper clips on the other side of the box are picked up. जाहिर सी बात है attraction होगी, वो clips जो है वो attract होंगी. When a small piece of soft iron is placed inside the box in figure 4.2, the paper clips fall off. Magnetic field lines in each diagram are shown as thin lines. Alright. On figure 4.1, mark an arrow on each of the magnetic field lines to show its direction. तो आपको magnetic field lines का direction बताना है. Part A is draw an arrow to show the magnetic field lines. So north से क्या होना चाहिए? South. So all of these magnetic field lines are going to be like so.
सही है. सो नॉर्थ से साउथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होना चाहिए. एक्सप्लेन व्हाई प्लेसिंग द सॉफ्ट आयरन इनसाइड द बॉक्स कॉजेज द पेपर क्लिप्स टू फॉल ऑफ. सो मैग्नेटिक फील्ड अब पेपर क्लिप्स के थ्रू जाएगा ही नहीं, अब वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू चला जाएगा. वाई? बिकॉज द सॉफ्ट आयरन एक्ट्स एज अ स्क्रीन. So it protects the magnetic clips or the clips from the magnetic field of the iron, of the magnet. सही है. So the soft iron traps the magnetic field The paper clips do not experience any more, or do not experience, नहीं, do not have magnetic field lines, passing through hence they lose their induced magnetism. Sayaji, so soft iron traps the magnetic field. The paper clips do not have any magnetic field lines passing through, hence they lose their induced magnetism. अगर आपका कोई भी unmagnetized material है and it's attracting another magnet, तो why does it attract another magnet? उसका simple सा reason ये है कि जो आपका magnet, it induces magnetism in that particular object. तो आप let's say for example ये आपके पास paper clips हैं, यहाँ पे आपका induced magnetism क्या होगा? This right here is going to become south and north. This right here is going to become south and north. ये north और ये south हो जाएगा, north हो जाएगा और ये south हो जाएगा. तो पेपर क्लिप्स के ऊपर इंड्यूस्ड पोल्स आ जाएंगे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म आ जाएगा. जब आपने आयरन पीस प्लेस कर दिया तो पेपर क्लिप्स के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगी. एंड इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डोंट पास थ्रू पेपर क्लिप्स, तो वो अपने पोल्स जो है वो क्या कर देंगे, दे लूज देयर इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म और हेंस देयर फॉल डाउन. सही, तो सिंपल सा आंसर है इसका. एक्सप्लेन व्हाई इज इट सेंसिटिबल टू हैव मैग्नेटिक स्क्रीनिंग अराउंड द ट्यूब ऑफ द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. नहीं, सो आपका कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या होता है, उसमें कंटिन्यूसली आपके इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम जा रही होती है. सो ये हैव अ कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन बीम, एंड वो कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन बीम जो है, अब मसला ये है कि व्हेन यू हैव चार्ज पासिंग थ्रू इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वो चार्ज के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स होगा जिसकी वजह से वो अपने पाथ से क्या हो जाएगा, डिविएट हो जाएगा. सही है. सो टू प्रिवेंट दैट वी नीड अ मैग्नेटिक स्क्रीनिंग मटेरियल इन द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या कैथोड रे ट्यूब. डज दैट मेक सेंस? ये बात समझ में आई नहीं आई? अच्छा, अब यहाँ पे देखो अब्दुर्रहमान, व्हेन यू हैव अ वायर, आपके पास एक सिंपल वायर है, वायर के अक्रॉस क्या चीज़ फ्लो हो रही होगी, करंट जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो हो रहे होंगे. सो लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी फ्लोइंग थ्रू दिस वायर. एंड अगर इस वायर को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूंगा, द वायर इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ फोर्स, जिसको हम लॉरेंस फोर्स कहते थे, लेफ्ट हैंड रूल से निकालते थे. तो ये वायर के ऊपर फोर्स क्यों है? द वायर के ऊपर फोर्स इस वजह से क्योंकि वायर के थ्रू चार्जेस मूव हो रहे हैं, एंड मूविंग चार्ज जो है उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है. हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बिल्कुल स्टार्ट में ये बात डिस्कस की थी कि यार आपका मूविंग चार्ज जो है वो उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है. तो जब वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगा तो इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फोर्स. इसी तरह से आपके पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है. कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम जा रही होगी. अब अगर ये बीम के अक्रॉस कोई मैग्नेटिक फील्ड आती है तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, ये बीम ऊपर नीचे लेफ्ट राइट या किसी भी तरह से डिविएट हो सकती है. वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स. ये चीज़ आप लोग देख सकते हो अगर आप घर पे जाके, अगर किसी के पास वो डब्बे वाला टीवी है, जो बड़ा वाला पुराना टीवी होता था, स्क्रीन के ऊपर मैग्नेट रखो, स्क्रीन डिस्टॉर्ट हो जाएगी. स्क्रीन डिस्टॉर्ट हो जाती है. सही है, स्क्रीन डिस्टॉर्ट हो जाती है. क्यों? क्योंकि जो पीछे से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो डिविएट हो जाएंगे.
डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, वो डिविएट हो जाएंगे. अब किस डायरेक्शन में डिविएट होंगे वो हमारा कंसर्न नहीं है, बट द पॉइंट इज कि दे आर गोइंग टू बी डिविएट. सो एसेंशली वी नीड मैग्नेटिक स्क्रीनिंग ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से या वो बीम जो है वो डिविएट ना हो, वो स्ट्रेट जाए. बीम को डिविएट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग प्लेट्स यूज़ करते हैं, एक्स एंड वाई प्लेट्स. एक्स एंड वाई प्लेट्स के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिससे हम डिटर्मिन करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो कहाँ जानी चाहिए, वो फिर हम अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं उसको. सो इलेक्ट्रॉन बीम will experience a magnetic force in a magnetic field and will deviate. सही है. सो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल एक्सपीरियंस व्हाट, दे विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स एंड उसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, डिविएट हो जाएंगे. वी डोंट वांट दैट टू हैपन. ऑलराइट, हमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर चाहिए, सिर्फ वहाँ पर जहाँ पर हम उनको बोले कि भाई यहाँ पे जाने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स. डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? यस. खैर CRO हमने किया हुआ नहीं है तो अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा शायद कि कन्फ्यूजिंग है, तो वंस वी डू दैट तो उसके बाद आसान हो जाएगा. So this right here is question number 153. A positively charged sphere C is brought close to a small uncharged sphere U. अब metal spheres हैं दोनों. Sphere U is suspended from an insulating thread. On figure 5.1, draw the induced charges on sphere U. पॉजिटिव वाली साइड पे कौन से चार्ज होंगे? यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है ना, तो U में पॉजिटिव वाली साइड पे कौन से चार्ज होंगे? पॉजिटिव को कौन सा चार्ज अट्रैक्ट करेगा यार? नेगेटिव. तो बोलो ना बेटा कि नेगेटिव होंगे. सो यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे. डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? क्लियर है? अच्छा जी. स्फीयर C is moved towards sphere U until the sphere touch. Sphere U is then repelled by sphere C as shown in figure 5.2. The charges on C and U are not shown. So now what's happening, sphere C was brought close until it touches U. So what's going to happen when sphere C touches U? जब C and U जो है वो आपस में कांटेक्ट में आएंगे, what happens when a charged object touches an uncharged object? नहीं, वो रिपेल होंगे अपनी जगह पे, yes, but why is the question? नहीं, वो like charges क्यों है? It is uncharged and a charged object. So when an uncharged object comes in contact with a charged object, तो क्या होगा? जो charged object है वो अपना कुछ charge uncharged को दे देगा. So let's say for example C is positively charged, U is neutral. U negative नहीं है. U is what? Neutral. When they come in contact with each other, C will give some of its positive charge to U. C will give some of its positive charge to U. कैसे? हम ये बात स्टैटिक में डिस्कस करते हुए आए कि यार पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं हो सकता. अगर पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं हो सकता तो C ने U को कैसे चार्ज दिया? पॉजिटिव चार्ज कैसे दिया? Because how do you make something positively charged? By taking away its electrons. So how did C make U become positively charged? C took away some electrons from U. ये आपके पास C है, सही है, ये आपके पास C है, ये आपके पास U है. C के ऊपर क्या था? पॉजिटिवली चार्ज था. C was what? C was positively charged. U जो है वो अनचार्ज था. तो what C is going to do is, जाहिर सी बात है E के पास जो है, U के पास जो है वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे C में और वो C के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे. लेकिन जाहिर सी बात है नॉट ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू मूव. ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. तो मे बी अब C के पास कितने पॉजिटिव चार्जेस रह गए? 3. और U ने क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, बिकॉज U लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, hence U is also going to become a 2 positive. अब again, that's not our concern कि how much charge is on U and how much charge is left on C. The question won't be worried about that. ना ही question आपसे कभी ये पूछेगा.
यूजुअली होता क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. अब एक अनचार्ज और एक चार्ज ऑब्जेक्ट व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, यूजुअली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. बट खैर, let's look at what the question is asking. State and explain what happens to the charge on the two spheres as they touch. What happens to sphere C? पहले C के ऊपर कितने चार्जेस थे? 5. अब C के ऊपर कितने चार्जेस हैं? We don't know, but it's less than 5 because C is going to give some of its positive charge to U. So what happens to the charge on sphere C? C के स्फीयर को, C जो है उसके चार्जेस को क्या होगा? दे आर गोइंग टू डिक्रीज. सो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस. व्हाई? पॉजिटिव चार्जेस डिक्रीज, व्हाई? अगेन पॉजिटिव चार्ज C से U तो जा नहीं सकता. नहीं. Again. You need to be very specific in your answers. U? नहीं यार, U के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है भाई? U तो न्यूट्रल था ना, तो उसके पास जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. हाउ डिड इट गेट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? C के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक्सेस तो नहीं है ना बेटा. पॉजिटिव का मतलब एक्सेस तो नहीं होगा. सो अगेन यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक. यू नीड टू अंडरस्टैंड, फिजिकली इमेजिन कि यार उन चार्जेस के साथ क्या हो रहा है. मैंने क्या बताया कि जब आपके पास C एंड U कांटेक्ट में आए, दिस इज C एंड दिस राइट हियर इज U. व्हेन C एंड U कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, व्हाट हैपेंड? क्या समझाया था अभी मैंने? एक तो फौरन भूल जाते हो ना तुम लोग यार, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉसेस हो रहे. तो सिंपल ये लिखोगे, इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए? अपनी मर्जी से वर्ड्स नहीं घुसाने बीच में. सही है ना? C के पास एक्सेस है ना U के पास एक्सेस है. क्या हुआ? C के पास था पॉजिटिव चार्ज, उसके पास था लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. C पॉजिटिवली चार्ज था, उसके पास क्या था? मतलब उसके पास जितने प्रोटॉन्स थे उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे. तो अब जब वो कांटेक्ट हुआ, तो कांटेक्ट के बाद क्या होगा? C gains some electrons from U. हमने देखा कि भाई U के पास एक इलेक्ट्रॉन था, जाके उसने एक पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल आउट किया. सही है. U के पास एक और इलेक्ट्रॉन था, उसने जाके दूसरे पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल किया. तो C जो है, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम U. नाउ बिकॉज C गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? होपलेस केस हो यार सारे के सारे. जब पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो मतलब जहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव थे, अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन होने की वजह से वो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे? कम हो जाओगे, डिक्रीज हो जाएंगे. सो पॉजिटिव चार्जेस डिक्रीज. क्यों? बिकॉज इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम यू. बस. Now in this case if you are going to write कि C से पॉजिटिव चार्ज U में ट्रांसफर हो गया, गलत. पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं होता. Explain what happens to charge on the two spheres as they touch charge on U. U का साथ क्या हुआ? हाँ, अब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे, पॉजिटिव प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, बैलेंस अनबैलेंस हो जाएगा. लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा नहीं लिखना. पॉजिटिव चार्ज तो था ही नहीं ना, तो इंक्रीज कैसे हुआ? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने का मतलब पहले कम था, अब ज़्यादा था. पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने का मतलब क्या है? पहले कुछ था जो इंक्रीज हो गया. यू तो न्यूट्रल था ना, उसके पास तो पॉजिटिव चार्ज था ही नहीं. न्यूट्रल होने का मतलब पॉजिटिवली चार्ज नहीं है. हाँ, पॉजिटिव चार्ज होंगे उसके पास, उतने ही नेगेटिवली चार्ज भी होंगे, बट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज नहीं होगा ना. शुक्र.
अगर थोड़ी देर पहले पॉजिटिव चार्ज पे जाके अटक जाते हो तुम्हारा सर जो है वो दीवार पे जाके मारता मैं. Yes. Why? So you will become positively charged, not increases. Increase लिखोगे गलत हो जाएगा because increase essentially gives the idea कि पहले positively charged था अब ज़्यादा हो गया. It implies कि it was positively charged before, now it's just more positively charged. सही है? So saying that would be wrong. Technically it would be wrong. अब it's up to the examiner कि वो आपको benefit of the doubt दे के वो सही कर दे या नहीं करे. I wouldn't. Right? So you आप लिखेंगे you becomes. Oh, sorry. So you are going to say that you becomes positively charged because it loses electrons. अब to see आगे लिखना है नहीं लिखना वो आपकी मर्जी है. You can write it even if you don't want to write it, that's fine, कोई mark नहीं कटेगा. Explain why U is repelled by C. इतनी लंबी नहीं कर दी ना, बस खत्म कहानी. Like charges repel. अब both are positively charged लिखोगे, आपने रूल नहीं बताया कभी वो, क्योंकि वो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो दोनों रिपेल करने चाहिए. लेकिन लाइक चार्जेस रिपेल इंक्लूड्स द रूल. अब क्योंकि वो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो वो रिपेल करेंगे, ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो गया. लेकिन अगर क्वेश्चन कहेगा एक्सप्लेन एंड आप लिखोगे बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, आंसर का मार्क नहीं मिलेगा. बिकॉज यू नीड टू एक्सप्लेन दैट इफ दे आर बोथ पॉजिटिवली चार्ज देन दे आर गोइंग टू रिपेल. बाय व्हाई? बिकॉज लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर. डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? ये कहना क्लियर है? Moving on towards 154. Figure 6.1 shows a coil of wire connected by flexible leads to a switch and a battery. ये क्या चीज़ का डायग्राम है? किस चीज़ की डायग्राम है ये? Yes, it's a DC motor. Now, I see a problem with this DC motor. यहाँ पर डीसी मोटर के साथ जो है वो एक प्रॉब्लम है. कैन समवन आइडेंटिफाई व्हाट द प्रॉब्लम इज? डीसी में से स्लिप रिंग्स नहीं होती. डीसी में स्लिप रिंग्स की जगह पे क्या होते हैं? नहीं, कार्बन ब्रशेस किससे कनेक्टेड होते हैं? कॉम्यूटेटर से. स्लिप रिंग्स जो है वो एसी जनरेटर्स के अंदर होती हैं. डीसी मोटर्स में स्लिप रिंग्स नहीं होती. डीसी मोटर में कार्बन ब्रशेस होते हैं और कॉम्यूटेटर्स होते हैं. सही है? कार्बन ब्रशेस तो एसी में भी होते हैं, जनरेटर में भी होते हैं. तो स्लिप रिंग्स की जगह पे आपके पास सिर्फ क्या होता है? कॉम्यूटेटर होता है. ऑलराइट. सो यू हैव दिस राइट हियर. कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट एंड इज फ्री टू टर्न अबाउट द एक्सिस. ऑलराइट. व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, फोर्सेस ड्यू टू द करंट एक्ट ऑन द साइड्स ऑफ द कॉइल. द कॉइल स्टार्ट्स टू टर्न. ऑलराइट, कूल. ड्रॉ एरोज टू शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो हम जो है वो force in a current carrying conductor, how do you explain, or what rule do you use to figure out the direction of force in a current carrying conductor? Left hand rule. Left hand rule में अब यहाँ पे again you need to realize कि you always use conventional current. जितने भी आपके मैग्नेटिज्म के रूल्स हैं वो सारे कन्वेंशनल करंट पे बेस्ड हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रूल्स आर बेस्ड ऑन कन्वेक्शन करंट. हेंस व्हाट्स द कन्वेक्शनल करंट? कन्वेंशनल करंट फ्रॉम वेयर टू वेयर? कन्वेंशनल करंट कहाँ से कहाँ होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव. कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव है तो कहाँ से कहाँ जाएगा? इट्स गोइंग टू स्टार्ट एट द पॉजिटिव. सही है? ये पूरा इस तरह से जाएगा and it goes over here. So the direction of current is like this. क्या हुआ? अबे भाई पासवर्ड चल रहा है, अभी मर्ज नहीं हो सकता वो. क्लास के बीच में कैसे मर्ज कर सकते हैं? जाओ बोलो मर्ज, अभी मर्ज नहीं हो सकता.
अच्छा, फिगर 6.1 shows a coil of wire connected by flexible leads. अच्छा, क्या क्या है यार, क्या कह रहे थे हम लोग? हाँ, तो हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट कह रहे थे. तो डायरेक्शन ऑफ करंट समझ में आ गया? ये कहानी क्लियर है? अच्छा जी. अब जब ये डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो क्लियर है, तो अब व्हाट आर वी गोइंग टू से? द कॉइल्स, नहीं अभी तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना, डायरेक्शन ऑफ करंट पे थोड़ी रुकना है. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आप कैसे बताओगे? यू आर गोइंग टू यूज द लेफ्ट हैंड रूल. द लेफ्ट हैंड रूल जो है वो, व्हाट्स द लेफ्ट हैंड रूल? व्हाट्स द इंडेक्स फिंगर? मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट्स द थंब? Force. And what's the current? Yes, the middle finger is the current. So direction of magnetic field कहाँ है? It's inside the plane. अगर मैं assume करूँ कि north आपका right पर है and south आपका left पर है, तो direction of current south वाली side से inside जा रहा है. South वाली side से current कहाँ जा रहा है? Inside जा रहा है. So the current is gonna go inside. The magnetic field is going to be in which direction? North से south. So it's going to be towards the right. नॉर्थ लेफ्ट पर है, साउथ राइट पर है. नॉर्थ लेफ्ट पर, साउथ राइट पे. नॉर्थ से साउथ जाएगा ना, तो टुवर्ड्स द राइट आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी. करंट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन, तो फोर्स कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड्स. फोर्स कहाँ लगेगा? इट्स गोइंग टू बी डाउनवर्ड्स. तो साउथ साइड के ऊपर या साउथ साइड पे जो वायर है वहाँ पे फोर्स कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड्स. एंड नॉर्थ साइड पे जो वायर है उस पर फोर्स कहाँ लगेगा? अपवर्ड्स. सो अगेन यू आर गोइंग टू सी अ क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ द कॉइल. क्लॉकवाइज रोटेट होना शुरू हो जाएगा. डज दैट मेक सेंस? हाँ हाँ. सो अगेन आई एम गोना हैव टू सिट लाइक दिस टू बी एबल टू एक्सप्लेन. जो मैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है, नॉर्थ से साउथ. डायरेक्शन ऑफ करंट ओवर द साउथ साइड वो क्या है? वो ये होगी. एंड फोर्स कहाँ लग रहा है? इट्स डाउनवर्ड्स लाइक दिस. तो अब जाहिर सी बात है वीडियो के ऊपर जो है ये एक्सप्लेन करना, शो करना मुश्किल है. तो अगेन यू ट्राई इट ऑन योर ओन. आई एम नॉट अबे भाई बहुत मुश्किल चीज़ बोल रहा है ये. अबे यार बहुत पतला हाथ हो गया यार. ये भी कुछ गड़बड़ हो गई. अबे यार 6 उंगलियां हो गई है तो. नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई भाई. अच्छा, आई नो हाउ टू करेक्ट इट, आई नो हाउ टू करेक्ट इट. ये हाथ कम पाँव ज़्यादा लग रहा है. अरे आप समझ जाओ, ये आपका थंब है, ये आपकी मिडिल फिंगर है एंड ये आपकी इंडेक्स फिंगर है. सो या आर्ट्स की क्लासेस चाहिए हो तो ले लेना फिर मुझसे बाद में. चलो भाई.
पहले तो 6 उंगलियां वाला बंदा बना देता है यार, हद हो गई है. अच्छा, draw arrows to show the direction of the forces. So yeah, we did that. The coil stops when it is vertical. Explain why the turning effect of force is 0 when it's at this position. तो vertical के ऊपर 0 क्यों है भाई? So horizontal पे आपका force जो है वो क्या है? वो एक certain force लग रहा है. That's fine. Vertical के ऊपर वो force 0 क्यों हो गया? उसका हाँ नहीं, वो तो इंडक्शन के अंदर है ना. सो द आइडिया इज़ वेरी सिंपल. आइडिया इज़ के आपका जब कॉइल जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा. सो व्हेन योर कॉइल इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, व्हेन योर कॉइल इज हॉरिजॉन्टल you have a downward force over here, you have an upward force over here. जो आपका टर्निंग इफेक्ट है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? It's because of the moment of force. The turning effect is because of what? The moment of force. All right, and if the turning effect is because of the moment of force, तो ये क्या हो जाएगा? Moment of force क्या होता है? Force into distance. तो force into distance is what? Force ये रहा, distance ये रहा. तो आपके पास एक सर्टेन मोमेंट होगा, मोमेंट की वजह से आपका कॉइल जो है वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा. सही है? ये गाने क्लियर है? ऑल राइट. सो नाउ एसेंशली व्हाट वी हैव इज के व्हेन योर कॉइल इज वर्टिकल, जब आपका कॉइल जो है वो वर्टिकल होगा, यस, व्हेन योर कॉइल इज वर्टिकल, तो आपका जो फोर्स है वो यहाँ पे अपवर्ड्स लग रहा है, वो यहाँ पे डाउनवर्ड्स लग रहा होगा. Your force is going to pass through the line of action. Your line of action is going to pass through the axis. And when your line of action passes through the axis, आपका distance क्या हो जाएगा? 0. अब moment क्या होता है? Moment is equals to force into distance. अब आपका distance 0 हो गया. अगर distance 0 है तो moment 0, no turning effect produced, hence no rotation. Does that make sense? सही है? So in this case right here, explain why the turning effect of forces is 0 at this position. So it's 0 at this position because line of action passes through the axis. Line of action passes through the axis. ठीक है? Force force into distance नहीं लिखो. Distance from center of rotation becomes distance from center of rotation is 0, hence no turning effect. Sure ji. So in order for the coil to rotate continuously, a split ring commutator is connected between the battery and the coil. Explain how the split ring commutator enables the coil to rotate continuously. Include a diagram in your answer. मसला ये कितने मार्क्स का है? वो अब क्वेश्चन आपको खुद बोल रहा है include a diagram in your answer. So the question is not giving you an option. The question wants you to draw the diagram. All right. So split ring commutator के साथ हम diagram कैसे बनाएंगे? तो again, you have to be an artist like me to draw a diagram, right? So पहले तो एक coil बनाते हैं. ये आपका coil बन गया. Coil जो है वो किसके साथ connected होता है बेटा? कॉइल जो है वो कनेक्टेड होगा स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के साथ. कम्यूटेटर के साथ आपके पास ब्रश होगा, ब्रश के साथ जो है वो फिर कहीं बैटरी से कनेक्टेड होगा. एंड देन यू हैव गॉट अगेन अ स्प्लिट रिंग एंड अ ब्रश. ठीक है. नाउ कौन सी साइड पॉजिटिव है मुझे ज़रा ये बताओ. लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड इज़ पॉजिटिव. तो मैं लेफ्ट साइड को पूरा जो है वो क्या कर दूंगा? रेड मार्क कर दूंगा, सो दैट आई नो कि मेरी पॉजिटिव साइड कौन सी है एंड मेरी नेगेटिव साइड जो है वो कौन सी है. सो दिस हाफ राइट हियर इज पॉजिटिव.
लेफ्ट वाला साइड जो है वो पॉजिटिव है, राइट वाला जो है वो नेगेटिव है. आई कैन इवन स्टार्ट नेमिंग देम ए बी सी डी. अब ए के ऊपर, ए बी के ऊपर जाहिर सी बात है करंट इज गोना गो इनसाइड. एंड अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा जहां पे करंट इनसाइड जा रहा था वहां पे फोर्स क्या था, डाउनवर्ड्स था. तो दिस साइड राइट हियर इज गोना गो डाउन, दिस साइड राइट हियर इज गोना गो अप. आपके पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस आना शुरू हो जाएंगी. ठीक है, ऐसा ही है. अच्छा जी, हाँ, करंट डाउनवर्ड कहाँ से जाएगा बेटा, फोर्स डाउनवर्ड है. लेफ्ट हैंड रूल. अभी तो ऊपर इतनी प्यारी ड्राइंग बनाई थी मैंने. सही है. अच्छा जी, सो वंस यू हैव दैट, यू आर नाउ गोइंग टू शो हाफ अ रोटेशन आफ्टर. मतलब इफ ए इज ऑन द लेफ्ट, नाउ ए इज गोइंग टू बी ऑन द राइट, सो हाफ अ रोटेशन लेटर. सही है. सो 180 degrees later, 180 degrees later, what is it going to be? You're still gonna have a coil. Sorry. You're still gonna have a coil, and then you've got अब जाहिर सी बात है because it's half a rotation later, तो D and C are gonna be here, B and A are gonna be over here. ये कॉम्यूटेटर के साथ कनेक्टेड है, ये इस कॉम्यूटेटर के साथ कनेक्टेड है. यू हैव योर कार्बन ब्रश एंड देन यू हैव योर बैटरी ओवर हियर. बैटरी की पोलैरिटी चेंज नहीं होगी. जो पॉजिटिव लेफ्ट पे था वो पॉजिटिव लेफ्ट पे ही रहेगा, वो पॉजिटिव हम चेंज नहीं करेंगे. बैटरी एग्जैक्टली सेम रहेगा, कॉम्यूटेटर सेम रहेंगे, कॉइल एग्जैक्टली 180 डिग्रीज रोटेट कर जाएगा. जब कॉइल 180 डिग्रीज रोटेट कर गया, नाउ अब हम नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को देखते हैं. तो आपकी नेगेटिव साइड कौन सी है, नेगेटिव साइड कौन सी है, दैट्स ए बी. पहले ए बी पॉजिटिव था, अब ए बी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. तो हम नेगेटिव साइड मार्क आउट कर लेते हैं ताकि नेगेटिव को हम ब्लू शो कर दें. सो दिस राइट हियर इज गोइंग टू बी योर नेगेटिव साइड. सो एट फर्स्ट ए बी वॉज पॉजिटिव, उसके ऊपर फोर्स कहाँ था, डाउनवर्ड्स. सेकेंड ए बी इज नाउ गोइंग टू बी नेगेटिव, उसके ऊपर फोर्स कहाँ होगा, अपवर्ड्स होगा. सो यहाँ पे फोर्स अपवर्ड्स है, यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड्स है. यू आर स्टिल गोइंग टू हैव एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, यू आर स्टिल गोइंग टू हैव एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. सो इन दिस केस राइट हियर, अब आप देख सकते हैं भाई कि आपका ए बी जो है उसके अक्रॉस डायरेक्शन ऑफ करंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. अब लेट्स अज्यूम दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट डिड नॉट चेंज. तो ए बी के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स है व्हेन इट्स ऑन द लेफ्ट, ए बी के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स होगा व्हेन इट्स गोइंग टू बी टू द राइट एज वेल. तो राइट पे वो फिर क्लॉकवाइज से क्या चला जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और फिर वो नीचे ऑसिलेट होता रहेगा. सो वो आपका रोटेशन नहीं बनेगी. सो टू हैव रोटेशन यू नीड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट अक्रॉस ए बी. एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट अक्रॉस ए बी चेंजेस, लाइक वी हैव शोन कि पहले ए बी पॉजिटिव था, अब ए बी क्या हो गया, नेगेटिव. पहले ए बी के करंट इनवर्ड्स जा रहा था, अब ए बी से करंट आउटवर्ड्स आ रहा है. So the direction of force is also changing, and because the commutator changes the direction of force, your rotation can keep on going. अगर ये direction of force change नहीं होगा, rotation आपकी रुक जाएगी. So the commutator keeps on changing the direction of force. एक मिनट बेटा, सही है. So the commutator keeps on changing the direction of force, hence AB keeps on rotating. अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यार मार्किंग स्कीम को एग्जैक्टली चाहिए क्या है. सो लेट्स लुक एट दैट एज वेल. कौन सा ये 154 था. सो पार्ट सी, टू halves ऑफ स्प्लिट रिंग क्लियर एंड क्लियरली कनेक्टेड टू ईच एंड ऑफ द कॉइल. डायग्राम में बना दिया हमने, एक मार्क हमारा हो गया. कॉन्टैक्ट्स ब्रशेज लेबल्ड, अब लेबल नहीं किए वो आप जाहिर सी बात है डायग्राम में लेबल कर देंगे. डिस्क्राइब्ड and connected to the battery. तो अगेन either on the diagram या आप लिखेंगे नोट्स के अंदर, जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है उसमें लिखोगे कि यार there is supposed to be the split ring commutator is supposed to be connected via spring loaded carbon brushes. ठीक है. Each side of the split ring touches other terminal
रिवर्सेस करंट इन कॉइल, वो रिवर्स हमने शो कर दिया कि भाई ए बी हमने एक डायग्राम में लेफ्ट साइड पे शो किया है, दूसरे साइड पे राइट हैंड साइड पे शो किया है, एंड वी शोन दैट द फोर्सेस डू व्हाट, द फोर्सेस गेट रिवर्स्ड. So forces reverse on each side, force always in the same direction. So that gives us all 4 points. सही है, इससे हमें चारों पॉइंट्स जो है वो मिल जाएंगे. ऑल राइट, क्योंकि हमने शो किया है कि पहले आपकी ए बी वाली साइड जो है वो किससे साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव के साथ. फिर हमने शो किया कि ए बी वाली साइड किसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव के साथ. हमने ये शो कर दिया कि टर्मिनल ऑपोजिट हो गए, और फिर हमने बाद में एरोज के साथ ये भी शो कर दिया और नीचे लिख भी दिया कि यार आपके क्योंकि टर्मिनल्स ऑपोजिट हैं, योर फोर्सेस आर आल्सो गोइंग टू बी ऑपोजिट. ठीक है, सो दैट गिव्स अस द 4 पॉइंट्स. डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? हाँ, क्या चीज़ समझ में नहीं आया, बोलो बेटा. हाँ, देखो ये कॉम्यूटेटर 1 है, ये कॉम्यूटेटर 2 है. रोटेशन के बाद कॉम्यूटेटर 1 लेफ्ट पे होगा या राइट पे आ जाएगा? ये कॉम्यूटेटर 1 है और ये कॉम्यूटेटर 2 है. कॉम्यूटेटर 1 इस वक्त क्या है, जो हम लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है. लेफ्ट साइड पे कॉम्यूटेटर 1 कौन से चार्ज है, पॉजिटिव है, और राइट हैंड साइड पे कॉम्यूटेटर 1 जो है वो क्या है, नेगेटिव है ना. तो आप जो है वो जिस टर्मिनल के अक्रॉस वो कॉम्यूटेटर कनेक्टेड है, आप वो टर्मिनल कंटिन्यूसली क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो. हाँ भाई, एट अ टाइम एक कॉम्यूटेटर एक ही टर्मिनल से कनेक्ट हो सकता है ना, बीच में से आधा हुआ है. बीच में से अगर आप देखो तो यहाँ पे कॉम्यूटेटर जो है वो स्प्लिट हुआ है. सो एट अ टाइम अ कॉम्यूटेटर कैन ओनली बी इन कॉन्टैक्ट विद वन टर्मिनल. तो अगर हम 1 की बात करते हैं तो 1 पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और 2 नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है. मीन्स राइट नाउ ए के ऊपर जो फोर्स होगा वो कहाँ होगा, डाउनवर्ड्स. यस, सो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है. ऑल राइट, नहीं वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम हम बना रहे हैं तो हमारी मर्जी है. सो नॉर्थ टू साउथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई. करंट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन, फोर्स कहाँ होगा, डाउनवर्ड्स. नहीं नहीं, इनसाइड द प्लेन, हाँ ऐसे होगा. नहीं, स्ट्रेट करो, स्ट्रेट हाथ स्ट्रेट करो इस तरह से. अरे अपना हाथ तो स्ट्रेट रखो, मैं उल्टा बैठा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम मूविंग माई हैंड. हाँ, लेकिन थंब नीचे करो, हाँ एक्सटेंड करो, यस, जस्ट लाइक दैट. सॉरी, रोटेशन की वजह से नहीं, फोर्स की वजह से कोयल रोटेट कर रहा है ना. रोटेशन की वजह से फोर्स थोड़ी लग रहा है. कौन सी दीवार पे जाके सर मारूं, मुझे बता दो यार. नहीं, डिसाइड करके बता दो, आज किस्सा ख़त्म करो. हाँ बोलो. तुम मुझे, अच्छा चलो खैर छोड़ो. आप भी पहले करंट आएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड के बाद करंट का डायरेक्शन आता है, फिर फोर्स आएगा. देखो मैग्नेटिक फील्ड के बाद करंट अलाइन करना होता है, फोर्स अलाइन नहीं होता. फोर्स तो अननोन है. मैग्नेटिक फील्ड के बाद क्या अलाइन करना होता है, करंट कौन सी डायरेक्शन में है. ये बना हुआ है, लग रहा है कि ऊपर और थोड़ा राइट पे जा रहा है, बट एक्चुअली जो 3 डायमेंशनल फिगर है उसमें शो किया जा रहा है दैट द करंट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन. यहाँ पे जैसे करंट राइट पे शो हो रहा है, बट करंट एक्चुअली राइट जा नहीं रहा. दिस राइट हियर इज अ 3D डायग्राम दैट्स ट्राइंग टू शो दैट द करंट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन. That's exactly what I've tried to show over here, that the current at the part AB is not upwards. AB जो है वो कहाँ है, that's inside the plane. अब inside the plane draw नहीं हो सकता ना, मसला ये है. inside the plane draw नहीं हो सकता, तो आप डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा शो कर देते हैं कि यार ये इस तरह से है. That means कि ये पीछे जा रहा है, पेपर के पीछे जा रहा है. सही है. So this right here is inside the plane. All right. So if this right here is inside the plane, तो आपका करंट कहाँ जा रहा है, inside the plane.
मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नॉर्थ से साउथ, फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड्स। अब अगर एक साइड पे फोर्स डाउनवर्ड्स है तो दूसरी साइड पे वो ऊपर लगेगा। एंड कॉम्यूटेटर अब चेंज हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे कॉम्यूटेटर था 1 पॉजिटिव के साथ, राइट हैंड साइड पे 1 का है, नेगेटिव के साथ है। तो अब क्योंकि 1 के अक्रॉस करंट चेंज हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गया, पहले पॉजिटिव था अब क्या हो गया, नेगेटिव, तो फोर्स भी चेंज हो जाना चाहिए। पहले ए बी लेफ्ट पे था, उसके ऊपर फोर्स डाउनवर्ड्स था, दैट मीन्स एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब ए बी आ गया राइट पे, एंड क्योंकि आपका डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हुआ तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी चेंज होगा। सो योर डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नाउ अपवर्ड्स एंड ए बी इज ऑन द राइट, सो अपवर्ड इज गोइंग टू गिव यू एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अगेन। सो ये करंट चेंज होने की वजह से आपका फोर्स का या मोमेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, एंड हेंस इट्स गोना कीप ऑन मूविंग इन एन एंटी क्लॉकवाइज मोशन। डज दैट मेक सेंस? चलें जी, आज जो है वो सिर्फ यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।